welcome my dear students, and in this video we are going to discuss the 2-mark questions in our practice sheet second semester. जय विज्ञान आप सभी को, और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है। बेटा पहले क्वेश्चन में मीटर में हाइट दी हुई है कपबोर्ड की, और पूछते हैं कि आप मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बताइए। मीटर में हाइट दी हुई है मतलब आपको ऑलरेडी बड़ा यूनिट में दिया हुआ है और आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू हियर, हाइट ऑफ कपबोर्ड ब्रैकेट में लिखिए इन मीटर। मीटर में क्या है तो इट्स 2 मीटर। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ कपबोर्ड इन मिलीमीटर। पहले तो आपको मिलीमीटर में ही निकालना है। मिलीमीटर में अगर आपको हाइट निकालना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 which is in meter. So you have to multiply by 1000 to convert meter into millimeter. So the answer will be 2000 millimeter. Okay. Now height of cupboard, the second conversion of this exercise. That's why it will give you 2 marks. The first conversion will give you the 1 mark, and the second conversion will give you the 1 mark. And the total 2 mark question is it. It is so height of cupboard you have to find in centimeter. आपको सेंटीमीटर में फाइंड करना है height of cupboard. So जब सेंटीमीटर में फाइंड करना हो तो मीटर वाला में आपको सिर्फ आप जब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे आप मीटर में तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। एंड हियर 200 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल हाइट. ओके, 2000 mm and 2 meter which will be given. 2 answers are there. This way you have to solve the question number 1 of 2 marks each. So here is the second number question, my dear students. You have to arrange in ascending order from the smallest unit to the biggest unit of length. You have to arrange. The who is the smaller among them? So the smaller unit among them is millimeter, is the smallest one. After that it will be centimeter. After that it will be decimeter. After that it will be meter, and the biggest unit is kilometer. Okay, and this answer will give you 2 marks only. You have to arrange this in a correct order. सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, उसके बाद किलोमीटर. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, here is a third number question in which a container's weight is 8000 kg and you have to convert it in tons. You have to write the weight of the same container in tons. So first of all, weight of container in kg it's given 8000. Okay, and we have to convert the weight of the same container. हमें कन्वर्ट करना है इसी को टन्स में. तो बेटा जब भी केजी को टन में कन्वर्ट करेंगे ना तो केजी और टन के बीच में 1000 का गैप होता है, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. और केजी छोटा यूनिट है, टन बड़ा यूनिट है वेट का, इसलिए डिवाइड करेंगे. तो सिंपली वी हैव टू डिवाइड 8000 बाय 1000 and it will be converted into tons. After dividing you will get 8 tons will be the answer of this question. Okay, and here it's the 2 number, here is the 3 number, and the both questions will give you 2 marks. So my dear students, here I have taken 3 consecutive questions, question number 4, 5 and 6 of your practice sheet. Question number 4 is asking you to arrange the given units in descending order. बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स
you have to arrange from the bigger unit to the smaller unit. Okay, so in the descending order we have to arrange the data. तो सबसे बड़ा यूनिट इसमें से कौन है? It's ton. Ton is the greatest unit. Okay, it is the greatest. After that, it's quintal. After that, it's kg. Okay, after that, it's gram, and after that, it's milligram. This is the arrangement which will give you 2 marks. Okay. After that, capacity of water tank is 6 kiloliter. In kiloliter, it's 6. You have to change in hectoliter. Kiloliter and hectoliter is a gap of between. In between there is a gap of 10, and kiloliter is greater than hectoliter. So you have to change from greater to smaller, bigger to smaller unit. You have to multiply by 10. Okay. So first of all, we will write here capacity of water tank in kiloliter. It is 6 kiloliter. Okay. Now capacity of water tank in hectoliter. So you have to only multiply 10. So you will change it in hectoliter, and the answer will be 60 hectoliter. 60 hectoliter will be the answer, my dear students. Now, in the 6th number question, you have to further arrange the units of capacity. These were the units of weight, and in the question number 1 we had discussed about the units of length. Okay, and this is the units of capacity which we have to arrange in ascending order. हमें छोटे से बड़े के क्रम में इन सभी को सजाना है. तो सबसे छोटा उसमें जो दिखाई दे रहा है आपको वो है मिलीलीटर, सबसे छोटा. ओके, उसके बाद जो है बेटा वो है डेसीलीटर, उसके बाद है लीटर, लीटर के बाद है बेटा डेकालीटर, और डेकालीटर के बाद सबसे बड़ा जो वहां है वो है किलोलीटर. इस तरीके का अरेंजमेंट करना आपको. मिलीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर और किलोलीटर, इस तरीके का अरेंजमेंट में आपको मिलेंगे 2 मार्क. और यहां पर हमने 2 मार्क क्वेश्चंस के 6 नंबर क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर लिया है. So students, this is the question number 7, in which you have to change the scale of temperature from degree Fahrenheit to degree Celsius. Okay, and the number is 212. So here we all know that there are 3 steps. In step 1, what we have to do if we are changing from degree Fahrenheit to degree Celsius, simply we have to subtract 32 from the number, okay, and we will get 180. And in step 2, we have to multiply the result of the first step with 5, and we will get here 900. Or in step 3, we have to divide the result of the step 2 by 9, and this will be our final answer here, which will be 100. So we can say that 212 degree Fahrenheit is equal to 100 degree Celsius. This will be your answer here, my dear students. So my dear students, this is the question number 8, in which you have to change degree Celsius into degree Fahrenheit. Here also the 3 steps will be here. Step 1, you have to multiply the given number with 9 so as to get 270. Now in step 2, you have to divide the result of the step 1 with 5. So you'll get the answer as 54. Okay. And in step 3, you have to add 32 to the result of the second step, and the answer will be 86 degree
Fahrenheit. So you can write that 30 degree Celsius is equal to 86 degree Fahrenheit, and this will be the last answer. Okay. So बेटा आपको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में हमेशा जब भी डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करना है, फर्स्ट स्टेप आपको जो गिवन नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई बाय 9, उसके आंसर को डिवाइड बाय 5 और उसके आंसर को प्लस 32, ये याद रखना है आपको, ठीक है। हम फिर भी लिखवा देते। देखिए अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि हमने अभी पहले किया था, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, -32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 9, ये करना पड़ता है। ओके, ये 3 स्टेप। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 5 एंड प्लस 32। तो ये चीज याद रखेंगे ना तो आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगा। So my dear students, here is the question number 9 of 2 mark section. You have to multiply the sum of these two numbers by 13. So first of all you have to sum, you have to add. Sum means add. Okay, you have to add these two and the result of these addition you have to multiply by 13. पहले आपको ये दोनों नंबर्स का एडिशन करना, जो आएगा आंसर उसके साथ आपको 13 मल्टीप्लाई करना, यही क्वेश्चन बोल रहा है। मल्टीप्लाई द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय 13. Okay, so first of all we have to do the sum here. Okay, so let's start to do the sum. Okay, 5 2 3 1 3 4 and 4 5 0 9 8 1. You have to add this. 4 plus 1 it's 5, 8 plus 3 it's 11, 9 plus 1 10 plus 1 it's 11, 3 plus 1 it's 4, 5 plus 2 it's 7, and 5 plus 4 it's 9. So what is the answer here? It's rupees 974,115 here. Okay, 974,115. So what we have to do next? Next we have to take this here 974,115 and we have to multiply this sum with 13, and after that we will get our final answer. So 3 5s it will be 15. 3 1s are 3 plus 1 4, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21 plus 1 22, 3 9s are 27 plus 2 29. Okay, and after there is 0, 1 5s are 5, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 4s are 4, 1 7s are 7, 1 9s are 9. You have to add this. 5 9 4 3 6 16 19 it's 12. So answer is 12663495. This will be the answer in rupees. So the final answer you have to write here. Our final answer is rupees 126,63,495. 1,26,63,495 rupees is our answer. Okay, you have to do this sum like this. So here is it here it is a word problem. Okay, here in 2 mark in question number 10. So first of all you have to see the question here. A TV and a washing machine together cost, TV और washing machine दोनों का total cost 2,34,250 है. The TV cost rupees 1,09,204. अगर TV का दाम 1,09,204 है, then what is the cost of washing machine? दोनों का साथ में cost दिया हुआ है, TV का दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट से टीवी का कॉस्ट अगर हम माइनस कर दें तो मेरे को वॉशिंग मशीन का कॉस्ट मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करने जा रहे हैं बेटा. कॉस्ट ऑफ टीवी एंड वॉशिंग मशीन दोनों का साथ में क्या कॉस्ट है इज इक्वल टू रुपीज 2,34,250. ओके,
और कॉस्ट ऑफ टीवी क्या है बेटा मेरा? अकेला टीवी का कॉस्ट क्या है? अकेला टीवी का कॉस्ट है ₹1,09,204। और हमको क्या कौन सा कॉस्ट निकालना? हमें निकालना कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट होगा हमारा, हमको माइनस करना पड़ेगा ये। सो वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम हियर इट विल बी 10 minus 4 will be 6, 5 minus 0, 4 minus 0 it will be 4, 2 minus 2 it will be 0, 4 minus 9 is not possible, you have to take 1 from here, 14 minus 9 it will be 5, 2 minus 0 it will be 2 and 2 minus 1 it will be 1. Though the cost of washing machine will be ₹1,25,046. This will be our final answer. Okay, my dear students, this will be the final answer of question number 10. So, my dear students, it is the question number 11 of your 2 mark section. A rectangular field is there. एक rectangular field है. Length और breadth दिया हुआ 300 meter and 100 meter, and you have to find the perimeter, but in kilometer. So, first of all, you have to find the perimeter in meter, as the length and breadth in meter, and after that you have to convert it. Okay, so there are 2 work to do in this question. First is to find the perimeter and second is to convert it from meter to किलोमीटर. पहला काम ये करना है कि आपको पहले पेरीमीटर निकाल देना है. पेरीमीटर आपको मीटर में आएगा और फिर आपको उसको कन्वर्ट कर देना किलोमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको किलोमीटर में चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ब्रेथ लिख देते हैं हम लोग. क्या लिखेंगे? Length of rectangular field is equal to 300 meter. Breadth of rectangular field is equal to 100 meter. Perimeter of rectangular field is equal to 2 multiply length plus breadth. ये होता है बेटा फॉर्मूला. पेरीमीटर का फॉर्मूला भूले तो कुछ नहीं होगा. 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह पे 300, ब्रेथ की जगह पे 100. 2 मल्टीप्लाई 400 और टोटल इट विल बी 800 meter. But what you have to do, you have to find perimeter of rectangular field in kilometer. So मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो बेटा, तो what we have to do, we have to divide the answer by 1000. So we have to divide this 800 by 1000, and after that it will be converted into kilometer. Okay, and the answer will be 0.8 kilometer. So this will be our final answer. Okay, and this will give you 2 marks. 1 mark till now and 1 mark for the conversion. 1 mark for the perimeter and 1 mark for the conversion. Okay. Same to same question in question number 12, but only the shape is changed here. Okay, in 11th number there was a rectangular field, here it is a square field. Okay, so the side of a square field is given and you have to find the perimeter in kilometer. So first, as same as of we have done in 11th, first of all we will write that what is the side of square field. Side of square field is equal to 250 meter. Okay, area, not area, we have to find the perimeter of square. So just write perimeter of square is equal to 4 multiplied by side, 4 multiplied 250, it will be 1000 meter here. What will be the answer here? It's 1000 meter, but you have to find
perimeter of square in kilometer. And to convert kilometer, we all know that we have to divide by 1000, and here the 1000 will cut off and only 1 will be left, and the answer is 1 kilometer. The total perimeter of this square field is 1 kilometer. Okay, साइड बेटा क्या था 250 मीटर था. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बोलता है 4 इंटू साइड. साइड की जगह पे हमने वैल्यू डाल दिया, मल्टीप्लाई किया तो हमको 1000 मीटर मिला. हमको क्वेश्चन बोला है कि आपको पेरीमीटर किलोमीटर में फाइंड करना, तो बेटा मीटर में मिल रहा है तो मीटर से किलोमीटर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करने के लिए हमें को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है. जैसे हमने 1000 से डिवाइड किया मेरे आंसर को हमें मिला 1, तो 1 किलोमीटर जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लेन द 13th नंबर क्वेश्चन हियर राइट नाउ. So my dear student, here the question number 13 is from the chapter number 7 volume. Okay, and here we have to find the volume of cuboid. हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है. बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है. हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमें लिख देना है ऐसे. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. Breadth of cuboid is equal to 7 centimeter, and height of cuboid is equal to 4 centimeter. Okay, so we have to find the volume of cuboid. Volume of cuboid is equal to length multiply breadth multiply height, my dear students. This is the formula. Length is 12, breadth is 7, and height is 4. 12 sevens up, it will be 84 multiplied by 4, and 84 into 4, it will be 4 4 16, it will be 336. And what will be the unit? Unit will be centimeter cube. You can write it cubic centimeter also, like this. There's two way you can choose, but I am choosing the way this, centimeter cube. This is the easy way and the short way. Okay, the final answer is 336 centimeter cube, because centimeter cube is the unit of volume. Okay, you can write centimeter cube in these two ways. So my dear students, here 13th number question is completed. So my dear students, one more question from chapter number 7. Here you have to find the volume of a cube whose sides measure 8 centimeter. Okay, side 8 centimeter है और आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का. तो बेटा साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा. तो ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ना, वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है बेटा 64, और आपको उसको फर्दर 8 से ये वाला 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आंसर क्या हो जाएगा बेटा 8 4 is 32, 8 6 is 48, and 351. 512 सेंटीमीटर क्यूब. मैंने कहा आपको वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर. मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं तो भाई इसे ही प्रेफर करता हूँ. ओके, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हो. फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. और ये क्वेश्चन 2 मार्क वाले में 7 नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था. नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15 वी आर एंटरिंग इनटू द चैप्टर नंबर 8. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन वेयर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. आप देखिए कि क्या
32 डिग्री, 51 डिग्री और 109 डिग्री, ये तीनों किसी ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं क्या? तो बेटा किसी ट्रायंगल के एंगल होने का एक प्रॉपर्टी होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मतलब एडिशन अगर 180 है तो ही वो ट्रायंगल संभव है। अब बाकी अगर तीन एंगल का एडिशन 180 नहीं होता तो वो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के एंगल नहीं हो सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल do the sum of all these angles, sum of all three angles is equal to 32 degree plus 51 degree plus 109 degree. Okay, 32 plus 51, it's 83 degree plus 109 degree. 83 plus 109, it will be 182 degree. So here sum, यहां पर क्या होगा बेटा, जो सम है हमारा तीनों एंगल का वो 182 है, मतलब वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया है, इट्स नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो 32 डिग्री, 51 डिग्री एंड 109 डिग्री आर नॉट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये किसी ट्रायंगल के एंगल हो नहीं सकते हैं, आर नॉट द एंगल्स ऑफ, बिकॉज इनका सम 180 नहीं आया है, इनका सम 182 आया है, तो इस तरीके से ये नहीं हो सकते। ओके, आपको समझ में आ गया होगा 15th नंबर सम। So in question number 16, my dear students, you have to find the type of triangle to see the angles and the sides. Okay, तो बेटा हमको कैसे पता चलेगा एंगल्स और साइड्स को देख करके कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है? पहले तो बेटा एंगल के बेसिस पे तीन टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और साइड्स के बेसिस पे भी तीन ट्रायंगल्स होते हैं, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एक होता है स्कैलन ट्रायंगल। सो ये ट्रायंगल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। आपको इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को समझने के लिए। बेटा किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है, कोई भी एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। तो जहां पर एंगल्स है, आप देखो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है जो राइट एंगल है, इसलिए बेटा ये जो ऊपर वाला जो फर्स्ट ए नंबर का ट्रायंगल है ना, वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एग्जांपल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके, अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन टाइप के ट्रायंगल थे, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, स्कैलन जिसमें तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप बी नंबर देख रहे हो तो एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और दूसरा भी 8 सेंटीमीटर है, मतलब दो साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है। तो दो साइड इक्वल जिस ट्रायंगल में होते हैं उस ट्रायंगल का नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा बी नंबर ट्रायंगल जो है ना वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपने दो टाइप्स लिख दिए और आपको 2 मार्क मिल गया। ओके, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा भी हो गया। So my dear students, here it is the question number 17 in which you have to find the products. Here in which you have to find the following products, but not doing, without doing any calculations, with the use of patterns. This is the question from chapter number 9. 9 number chapter से बेटा ये question है और आपको बिना कैलकुलेशन के प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर 995 मल्टीप्लाई है तो हमें पता है कि इसका तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस आउट 5 फ्रॉम 995, क्रॉस आउट 5 फ्रॉम 995, व्हाट वी गेट 99, and now we have to multiply 99 with its successor 100 and we will get 9900, and after that
9900 will be written followed by 25. हम 25 को पीछे लगा देंगे तो our answer will be 990025 and this will be the answer. Means whenever we multiply 995 into 995 we will get answer 990025. This way you have to find the solution of this. Okay, so पहले आपको क्या करना है कि आपको 995 में से 5 को क्रॉस आउट कर देना है, आपको मिलेगा 99 को उसके सक्सेसर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। 99 का सक्सेसर का मतलब इसके बाद वाला नंबर 100, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जस्ट ये जो आंसर आया उसके पीछे आपको 25 लगा देना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। सेम टू सेम यहां करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे 5 फ्रॉम 1005, क्या मिलेगा हमको? क्रॉस आउट करने के बाद 100 मिलेगा। बेटा ये जो 100 है इसी का सक्सेसर के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 10100 और ये जो 10100 आपको मिल रहा है इसी को हम फॉलोड बाय 25, उसके पीछे 25 लगा देंगे तो मेरा नंबर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। मतलब क्या कि जब भी हम 1005 और 1005 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो मेरा आंसर 10025 ही आएगा जो हमने अभी फाइंड किया। तो पहले क्या किया मैंने कि 1005 में से 5 को हटा दिया तो मेरे को मिला 100 को उसी के सक्सेसर उसके बाद वाला नंबर 101 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमको मिल गया 10100 और 10100 के पीछे सिर्फ मैंने 25 लगा दिया तो 1010025 मेरा इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर हुआ। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन 9th नंबर चैप्टर से है विच इज 18 नंबर। आपको इसमें भी पैटर्न लगाना है, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है बेटा। तो कितने नंबर है यहाँ पर? 3 1 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा कि हम पहले फ्रंट काउंटिंग करेंगे। 3 1 है इसलिए 1 2 3 और फिर बैक काउंटिंग करेंगे 2 1 1 2 3 और ये 3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे 3 2 1। देखिए इस तरीके से यही मेरा आंसर है, ये मैंने पूरा बताया हुआ है आपको। और यहाँ पर बेटा जितना जीरो होता है ना उतना ही जीरो आपको बीच बीच में लगाते जाना है। वैसे कितना 1 है? 2 1 है तो 11 into 11 होता है 121, 1 2 1 और 1 2 1 के बीच में ये जीरोस लगाते जाना। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 0 0 2 0 0 1, ये आपका आंसर होगा। पैटर्न के हिसाब से आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है मल्टीप्लाई किए बिना, ठीक है my dear students? Here we have to find the average of this set of numbers and this is question from the exercise 10.2, the second exercise of chapter number 10. We have to find the average of these set of numbers. So first of all we have to write the number of quantities. Okay, कितने नंबर्स हैं पहले वो गिन के हमें लिख लेने हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर्स हैं। ओके, फिर हमें इन चारों नंबर का सम करना है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज। इन चारों नंबर का हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो 20 प्लस 12 प्लस 23 प्लस 17। ओके, 20 प्लस 12 इट विल बी 32 प्लस 23 प्लस 17 इट विल बी 40 एंड टोटल इट विल बी 72। तो बेटा सम मिल गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज का। ओके, तो सम हमको कितना पता है? 72 और 72 को डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। तो जब भी हम 72 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हमको मिलेगा 18। ओके, और मेरा आंसर हो जाएगा 18। आप इसको डिवाइड कर लेना। ओके, और ये इस तरीके से 19 नंबर सम बनेगा। So my dear students, here it is the question of the last question of 2 marks question section and the last question of this video also.
वी हैव 4 नंबर्स, वी हैव द सम ऑफ 4 नंबर्स। तो यहां पर बेटा ये जो 4 है ना, वो आपको पहले ही बता दे रहा है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया हुआ है कि टोटल जितने नंबर्स का सम हुआ है वो 4 थे। और बेटा आपको सम ऑफ क्वांटिटीज भी दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज जो है वो भी आपको दिया हुआ है। और बोलता जो सम है बेटा, ये 4 नंबर्स को एडिशन किया गया और उसका एडिशन 240 आया। आपको सब कुछ मिला हुआ, आपको कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एवरेज का फॉर्मूला लिखना है और एवरेज निकालना है, फाइंड द एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला बेटा होता है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके एडिशन करने के बाद उसके साथ उनकी जो संख्या है, तो जितने नंबर्स की एडिशन हुई थी उनकी नंबर्स, उनको डिवाइड करना है आपस में हमें। ओके, सो यहां पर बेटा जो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज है वो है 240 और आपको डिवाइड करना है 4 से। और बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 और ये आपको फाइनल आंसर है और ये आपको 2 मार्क देगा क्वेश्चन में। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज एंडिंग अबाउट 37 मिनट। इस वीडियो ने कुल 37 मिनट लिए हैं और 37 मिनट में आपको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने आपको बताया, दिखाया, जो 2 मार्क देंगे आपको। ठीक है, और आने वाले वीक में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मतलब 2S डायरेक्टेड 3 मार्क्स ईच का वीडियो मिलेगा और आने वाले वीक में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करने के बाद आप बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द लाइव सेशंस वेरी सून। थैंक यू सो मच।